Good evening, guys. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we will cover chapter Why Do We Fall Ill of Bio Portion Class 9th. This is the first lesson regarding this chapter. So, let us start our today's session. Let me take the pen first of all so that I can mark the important points on the screen. So, first of all, let us see what is health. सबसे पहले देखेंगे हम कि health का क्या मतलब है. Health is a complete physical, mental, and social well-being of an individual. Health is the complete physical, mental, and social well-being of an individual. Not only merely a absence of diseases or infirmity. Health का मतलब है a person should be physically, mentally as well as socially good, socially healthy. तो अगर किसी इंसान में कोई डिजीज नहीं है, उसमें कोई वीकनेस नहीं है, we cannot call that person that he is healthy. हम उसको नहीं कह सकते ये healthy है. If he is not, if he is physically healthy but he is not mentally healthy, तो उसको हम healthy नहीं कह सकते. A person should be physically, mentally as well as socially healthy. He should be socially good. Then we call that person a healthy person. But mere absence of diseases does not qualify a person to be healthy. According to WHO, that means World Health Organization, has recognized three dimensions of health. हेल्थ को हम तीन डायमेंशंस में स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट इज द फिजिकल, सेकंड इज द सोशल, एंड थर्ड इज द mental well-being. What does the physical well-being of an individual mean? Physical means if all the important organs of the body of a person are working normally, और all the जो organs है body के वो properly काम कर रहे हैं. There is no malfunctioning of any part of the body of an individual. So we call that person that he is physically healthy. ठीक है. Next one is mental health. What does a mental health mean? Mental health means that there should be harmony between individual and its environment. What does this mean? That means a person should be free from tensions. He should be free from anxiety. If a person is having tensions, तो उसका उससे उसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ जाती है. और या अगर वो फिजिकली हेल्दी है लेकिन उसमें मेंटल में टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, so we cannot call that person that he is healthy. Next one is the social. What is the social this healthiness of a person? That means every person is living in a society possesses some basic requirements. If a person is getting the good earning, if he is getting the good food, if he is getting clean drinking water, if he is getting if he is having a clean place to live, is if he is living happily and in family, if he is living a cheerful life, ये सारी चीजें सोशल में आते हैं. अगर उसके पास अच्छी अर्निंग नहीं है तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट गुड फूड. तो उसके पास अच्छा फूड नहीं आएगा, उसके पास अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं, उसको अच्छी लिविंग फैसिलिटीज नहीं मिल जाएगी, उसको एक हैप्पी फैमिली नहीं होगी, क्योंकि पैसा बहुत ही जरूरी होता है. ठीक है. So he should be socially healthy also. That is why we define health as in the complete physical, mental as well as social well-being of an individual. एक सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस हेल्थ, उस इंसान को हम हेल्दी नहीं कह सकते जिसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई डिजीज नहीं, कोई इन्फर्मिटी वीकनेस नहीं है. यू शुड बी फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली हेल्दी. So let's move on to next screen. What are the factors that determine the health of an individual? तो factors can be personal and it can be community. ठीक है. मतलब that exists in the community. For example, personal factors, how you can maintain your health at personal level, at individual level. For example, exercise, it's a personal factor.
अगर आप एक्सरसाइज रोज करते हो योर बॉडी विल बी फिट, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपके बॉडी में ज्यादा ये डिजीजेस नहीं आएंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते हो, आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, आप ओबेस नहीं बनोगे, तो आप हेल्दी रहोगे। नेक्स्ट वन इज गुड हाइजीन, सॉरी गुड हाइजीन है यहाँ पर, ठीक है। आप कितनी साफ सफाई रखते हो अपने आप की, आप अपने आप को कितना साफ रखते हो, आप कितना नहाते हो, क्योंकि जितना अपने आप को साफ रहेंगे वी विल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, तो हमें डिजीजेस नहीं होगी। जब डिजीज नहीं होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट वन न्यूट्रिशियस फूड, आप कितना बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। आप खाएंगे योर हेल्थ विल बी गुड, आप नहीं खाएंगे तो योर हेल्थ विल डेटोरेट। नेक्स्ट इज गुड हैबिट्स फॉर सेल्फ, आपकी कितनी गुड हैबिट्स है, आप कितनी जॉगिंग करते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आप कितनी मतलब विजिट करते हैं डॉक्टर्स को अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर्स हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक इंसान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ यू आर लिविंग इन ए कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कम्युनिटी, अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहां पर बहुत ही गार्बेज है, बहुत ही गंदगी है सड़कों पर, तो ये आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिटी में रहते हो जहां पर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स रोज नहीं होता है, तो जब क्लीनिंग वहां पर डिजीजेस उठने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो बहुत सारी डिजीजेस उठ जाती है, ठीक है, तो उससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। गुड जॉब, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो वहां पर जॉब्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जब आपको जॉब नहीं होगा तो आपको एक अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, जब आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छा फूड नहीं खा पाओगे, आप अच्छे अपने लिए लिविंग नहीं क्रिएट कर पाओगे, अच्छा खा नहीं पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपकी हेल्थ बिगड़ती रहेगी। नेक्स्ट वन इज हार्मनी अराउंड, तो जहां पर आप रहते हो तो वहां का जो आसपास का एनवायरनमेंट है, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी मतलब हैविंग हेल्थ फैसिलिटीज, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, देन यू कैन रिमेन हेल्दी देयर। अगर वहां पर गंदगी है तो आपके हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन इज डिजीज, अब हम डिजीज किसको कहेंगे, यानी अगर किसी की बॉडी में कोई भी फिजिकल or functional change from the normal to abnormal state that causes discomfort or disability, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल या फंक्शनल चेंज आ जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है, आपकी बॉडी में एक डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, दैट इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, वी कॉल दिस कंडीशन एज ए डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, डिसेबिलिटी महसूस हो रही है, आपका हेल्थ इम्पेयरमेंट हो जाता है, वी कॉल दिस कंडीशन एज ए डिजीज, ठीक है। दैट मीन्स या मॉल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी आर ए पार्ट ऑफ इट विद स्पेसिफिक सिम्टम्स, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू फील डिस्कम्फर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, आपको कोल्ड हो जाता है तो आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो किसी भी डिस्कम्फर्ट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वी कॉल दैट एज ए डिजीज। तो डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप दैट मीन्स जिनसे आप गेस कर सकते हो कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी डिजीज, यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। तो सिम्टम्स को क्या कहते हैं, सिम्टम्स आर सिंपली द मैनिफेस्टेशंस और एविडेंसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज। सिम्टम्स से आपको पता चलता है कि एक इंसान में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो एवरीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, हु इज हैविंग कफ, कंटिन्यूअस फीवर, तो उसको कह रहे हैं कि आप टेस्ट करवा लो क्योंकि आप में कोविड के चांसेस हो सकते हैं। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इन सिम्टम्स के बेस पे आप गेस कर सकते हो इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या इंडिकेशंस ऑफ सम एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी, आप सिम्टम्स को दूसरे लफ्जों में इस डिफाइन कर सकते हो, इट्स द इंडिकेशंस ऑफ सम एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है बॉडी में, फॉर एग्जांपल आपको जुकाम है, आपको फीवर है, आपको कफ है, दीज आर द सिम्टम्स, तो ये किसी भी डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर विल ट्रीट यू, तो वो आपको अकॉर्डिंगली बताएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज द
what are the factors which leads to diseases, किन factors की वजह से, and what are the sources of diseases. The factors that cause diseases can be internal and external. ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है और एनवायरनमेंट जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसकी वजह से भी हो रही है. ठीक है, that means if the disease causing factors exist inside our body, inside the human body, these factors are called the intrinsic factors or internal factors. For example, malfunctioning or improper functioning of various body organs like heart, like kidney, like liver. अगर आपकी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, किसी को पहले से कोई डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, किसी को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, किसी को सिकल सेल एनीमिया है, उसको ब्लड के ये प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मोनल इम्बैलेंस. अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिससे इंसान की ग्रोथ हो जाती है, हाइट बढ़ती है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, द इंडिविजुअल रिमेन्स शॉर्ट, वो शॉर्ट रह जाता है. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर, चेंज इन द इंटरनल मैकेनिज्म. ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. अगर हमारे इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, एंड आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, सो वी विल गेट द डिजीजेस क्विकली. हमें ज्यादा से ज्यादा डिजीज होगी अगर हमारे इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजीज काज्ड बाय इंटरनल फैक्टर, जैसे कि कार्डियक फेलियर हो जाता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट फेल हो गया. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स की प्रॉब्लम. ठीक है, बोन्स में कैल्शियम ये लॉस हो जाता है. ठीक है, बोन्स वीक हो जाती है. सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड फट जाता है, क्योंकि उसमें सिकलिंग ऑफ आरबीसीज हो जाता है. एलर्जीज, बहुत सारी एलर्जीज, या कैंसर, किसी में कैंसर है, it is also because of internal factors. It is because of uncontrolled cell divisions in our body. It all these because of some internal changes in the metabolism of our body. तो उनकी वजह से ये problems हो सकते हैं. These are all internal factors or intrinsic factors. Now factors could be external also. There are some things present in the environment which cause diseases. For example, imbalanced diet. ये आपको बाहर से मिलता है. अगर आपको बैलेंस्ड डाइट मिलेगा, यू विल रिमेन हेल्दी. अगर आपको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलेगा, यू विल नॉट रिमेन हेल्दी. नेक्स्ट इज डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजे हैं, प्रोटोजोन्स हैं, वर्म्स हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं. या आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर पोल्यूटेंट्स हैं, आप किसी ऐसे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में रहते हैं, वहां पर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, पानी में होते हैं, एयर में होते हैं, उनकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है. These are all external factors. Of tobacco, alcohol, drugs, तो ये सारे externally आप लेते हो. जब आप इनको लेते हो तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. So these are all factors from the outside which affect our bodies. Like इन external factors की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे कैशोकार हो सकता है. ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, बॉडी वेट बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग फैटी फूड्स, नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, बेरी बेरी बिकॉज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी, ये भी एक डिजीज है. ग्वाइटर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. मलेरिया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम, एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से. ट्यूबरकुलोसिस अगेन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया. ठीक है, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर एंड दीज आर द डिजीज काज्ड बाय द external factors. So let's move on to what are the types of diseases. There are different types of diseases. The first type of disease is acute diseases. ठीक है, the disease which appears suddenly. वो डिजीजेस जो हमारी बॉडी में सडनली अपेयर हो जाते हैं और कुछ दिन रह जाते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, उसके बाद कुछ मेडिकेशन लेने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाते हैं. तो वो ज्यादा देर हमारी बॉडी में नहीं रुकते. जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाता है, 2 दिन हो जाते एंड नेक्स्ट डे अपने आप ये ठीक होने लगता है. इन्फ्लुएंजा हो जाता है. ये सारे सडनली आ जाते हैं और कुछ दिन हमारी बॉडी में रह के फिर खत्म हो जाते हैं अपने आप, या कुछ मेडिकेशन लेने के बाद. This is the first disease. Second is chronic disease.
क्रॉनिक डिजीज में जो हमारी बॉडी में हमेशा रहेगा या बहुत देर तक रहेगा, ठीक है। आप कंटिन्यूअस मेडिकेशन उसके लिए लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्रॉनिक डिजीज में अगर आप हार्ट डिजीज है, किसी को हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन नहीं ठीक होता है ज्यादा, ठीक है। कैंसर, ये भी नहीं ठीक होता है, दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज, आपको कंटिन्यूअसली मेडिकेशन थेरेपीज लेनी पड़ती है, तब आप जिंदा रह सकते हो। डायबिटीज, ठीक है, ग्लूकोज की प्रॉब्लम, ग्लूकोज लॉस हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है लगभग इंसान जब तक मर जाता है या बहुत सालों तक रह जाती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड chronic diseases. Next one is the congenital diseases. Congenital diseases are those diseases which are present since birth. जब एक इंसान या बच्चा पैदा हो जाता है, वो बचपन से ही उसके बाय बर्थ उसकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं उसमें डेवलप? या तो उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में हो जाती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है उसमें, ठीक है, या ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कुछ प्रॉब्लम्स उसके मेटाबॉलिज्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली ये परमानेंट होते हैं और इजीली मतलब ठीक भी नहीं होते हैं, एंड these can be inherited to their children, because the diseases, the disorders which are because of change in the genetic material of an organism, they are inherited to the offspring sa generation to the generation. For example, clipped lip, किसी का ये बीच में लिप कटा होता है, it is genetic, ठीक है। क्लिप्ड पैलेट, किसी का पैलेट बीच में कटा होता है, ये भी जेनेटिक है। डाउन सिंड्रोम, इट इज आल्सो जेनेटिक। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी जेनेटिक है। ये सारी डिजीजेस कॉन्जेंटल डिजीज हैं जो एक इंडिविजुअल में बाय बर्थ उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज acquired disease. Acquired disease means the diseases which we develop after birth, जो दुनिया में आने के बाद हम डेवलप करते हैं because of exposure to different pollutants, ठीक है, उनको हम acquired diseases कहते हैं। ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, दुनिया में आने के बाद हम इसको डेवलप कर लेते हैं। इसके दो कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट कम्युनिकेबल, या जिसको आप इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है द डिजीज विच इजीली स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से फैल जाती है। और इसकी मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल आज है कोविड-19। टच करो किसी को तो कोविड लग जाएगा, ठीक है। मतलब किसी के क्लोज जाओ तो कोविड लग जाएगा अगर उसको कोविड है। दीज आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये किसकी वजह से होता है? कोविड किसकी वजह से होता है? वायरस, कोविड वायरस से, नोवल कोरोना वायरस से हो जाता है। बैक्टीरिया से हो सकते हैं, फंजाई से हो सकते हैं, वर्म से हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जिसको आप नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो। दैट मींस दीज डिजीज रिमेन कन्फाइंड टू ए सिंगल पर्सन। अगर ये एक इंडिविजुअल में है, उस इंडिविजुअल से दूसरे में स्प्रेड या ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे कि कैंसर, किसी इंडिविजुअल को कैंसर है, ये दूसरे को नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि एलर्जीज, ये एक इंडिविजुअल में एलर्जी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को नहीं हो सकती है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हमने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। In next lecture, we will carry on with why do we fall ill chapter, and we will take the rest of the topics in next lecture. Thank you.